In general, money has two functions. One is exchange value and another is a store value. Initial time, money was not directly used what we are using in the today's form. For example, initially, money was having intrinsic value. Intrinsic value means the money has its own substance, means it is backed by its own material. In the sense, just imagine if you give someone a silver coin, even if silver coin someone is not uh, taking as money, then silver coin will be used in some other purpose. Just for example, imagine at this time 25 paise is not in circulation. 50% paise coin is in obviously according to government of India, 50 paise coin is in circulation, but no one is accepting. Even in some area, 1 rupee coin people are not accepting. But just imagine if 25 paise coin is of silver or is of copper or is of gold for time being, then even if it is out of circulation, you can extract material. But take the currency note. It is known as fiat money, fiat currency. If 500 and 1000 rupee note was demonetized, then it is of no use. Even if you are having so many notes you did not exchange, nowadays it is of no use. So at this time, currency is evolving in entire world. We are moving in different phase. So two terms are there: cryptocurrency or cryptos, means cryptos. You can say it is about cryptocurrency, and CBDC means uh, central bank uh, currency. Okay, so it is about two currency. So one is crypto. Crypto is deregulated. Okay, so deregulated in the sense ki it is having no control over the currency. Everyone is using it in its own way. Okay, but whatever central bank is issuing, okay, so it is used by everyone. So in central bank currency, for example, money in currency rupee or something, it is backed by government in the sense, okay, so it is backed by government that even if someone is not taking, then we can exchange. Just take for example, a currency note is torn. Even if in that case you can use that, okay, you can use that, you can exchange that in your some of the office of RBI. For example, in every places there is office of RBI in every state almost. Okay, so you can go there and exchange the things. But just imagine if there is private bill, any private bill, that is not acceptable everywhere. Just for example, if you know some person and he has written a just piece of paper, he give that person 100 rupee, then on the piece of paper, the person whom to he or she has referred will give you 100 rupee, even 1000 rupee, even 1 lakh rupee. But same page, if you will bring to some other person, he will laugh you. Are you mad? This paper, who has given you? I don't know any such type of person. But if even if a small child is carrying a 500 rupee note, then it is carrying 500 worth. Even if the person is not knowing you, even if you have not known to the person, then the person will give you goods or services worth 500 rupee. So cryptocurrency are not having any backup, but CBDC means central bank digital currency. Okay, so central bank digital currency has backup. The backup is by, for example, government of India, in the sense ki RBI will issue, but on the behalf of government of India. So why this topic?
cryptos and CBDC are not the same. It is obviously must for essay, report, argument, because in budget 2020, 23, 22, 23, okay, Nirmala Sitharaman, the finance minister, when presented the budget, she said कि obviously government will impose taxation. So cryptocurrency will be discouraged by a taxation and capital gain provisions. This article in the Hindu, written on 19th of April, means on 19th of this month, by Professor Arun Kumar. So this article is very important, you should go through. Here it is said कि cryptocurrency, obviously many people are involved. For example, at this time, what you can understand its worth. At this time, the investment in crypto, or you can say valuation of crypto, is more than 2 trillion. Okay, more than US dollar 2 trillion. In the sense, you can say almost 2/3 of our GDP. Okay, 2/3 of GDP of India worth is of cryptocurrency or cryptos. But if you consider the entire gold in the world, means global gold, it is not having that much worth. Means $2 trillion worth is not there, whatever non-source of gold is there. So this is the things. So it is said that at this time, for example, Russia and Ukraine are fighting war. So in Russia and Ukraine war, for example, it is a term kleptocrats. Kleptocrat terms is used for those people who are having political power, or you can say political elite, who are working for their own interest. For example, Russia and Ukraine are fighting war. Russia, obviously a socialist country, but after disintegration, a lot of business tycoon emerged, and they are using for their own benefit. It is said that in Russia, few people are there who are having accumulated value of many things. So Russian kleptocrats are using crypto to escape sanction. US or Western countries have imposed sanction. For example, they cannot use SWIFT system, and also Ukraine is using cryptos to garner resources for fighting war with Russia. So it is happening. It is said it is going through, and it is increasing. When in 2009, for example, cryptocurrency started by Satoshi Nakamoto, and it is increasing. In fact, at this time, a Bitcoin is having a very huge huge value, which is beyond control of, in the sense, beyond reach of common man. So it is the things ki RBI is saying. For example, governor of RBI, one of the deputy governor of RBI says na ki cryptos are in fact worse than Ponzi scheme. So, for example, what is the backup? Just imagine ki you purchase one Bitcoin in, for example, 1 lakh US dollar. 1 lakh US dollar you purchased, and tomorrow it is crashing. Then you are in zero. Your entire saving may be gone. But if you are using, for example, central bank digital currency, or just any currency, or just any value, just any asset, it is having backup. For example, some backup is there. If 500 rupee note is there, then it is written कि बी प्रोमिस टू पे यू. आप एक तरह से आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं, वो आपको प्रोमिस करते हैं, उनका सिग्नेचर होता है. इसका मतलब है कि दैट विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर. सो क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, डीरेगुलेटेड है. अब फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी को कोई भी क्रिएट कर सकता है. जस्ट इमेजिन करो कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, आपके पास कंप्यूटर रिसोर्सेस है, कंप्यूटर एसेट है, आपके पास कंप्यूटिंग पावर है, तो आप जो है कंप्यूटिंग को आप जनरेट कर सकते हो. जस्ट एग्जांपल, आपने एक बिटकॉइन आपके पास है, आप उस बिटकॉइन को आप और जनरेट कर सकते हो. 2 बिटकॉइन, 3 बिटकॉइन आप जनरेट कर सकते हो. लेकिन जो आपका करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है या फिर सेंट्रल बैंक करेंसी है, तो उस चीज को आप एक वंस स्पेंड कर दिए तो आप उसको
जनरेट नहीं कर सकते हो, आप न्यू करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हो। यदि करते हो तो वो इलीगल है और उसके लिए आपको सजा होगी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यदि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि आप क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रॉपर तरीका से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है तो सीबीडीसी का क्या फायदा है। देखो, अभी जो करेंसी नोट्स हैं, जस्ट इमेजिन करो कि 2000 रुपी का नोट पब्लिश हो गया, यानी कि प्रिंट हो गया और वो मार्केट में सर्कुलेशन में आ गया, आरबीआई ने उसको जारी कर दिया। अब आरबीआई को ये नहीं पता है कि वो 2000 का नोट किसके पास है। इनफैक्ट देखोगे, इट इज समटाइम सेड ना कि जो पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में हम चलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो खबर उड़ती है तो कोई जांच उसको नहीं करता है और स्प्रेड कर देता है। तो सो कॉल्ड एट दिस टाइम, इसमें से फॉर एग्जांपल 1% बिलियनायर अभी है, उसने जब आया तो बोला 2000 नोट में चीप लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने चीप लगाया, बाद में द पर्सन एक्सेप्टेड कि इट वाज माय मिस्टेक। सो ऑब्वियसली है कि द थिंग्स की ये चीप और ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन 2000 का नोट या 500 रुपी का नोट यदि वंस आरबीआई ने अपने चेस्ट से रिलीज कर दिया तो वो किसके पास है ये पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ये ट्रैक नहीं कर सकती ना कि फलना फलना नंबर का, देखो ये हर नोट में, हर आप करेंसी नोट जो देखते हो उसमें एक नंबर होता है और वो हर नंबर एक तरह से यूनिक होता है। आप टू नोट्स में जो सेम नंबर नहीं पाओगे, यदि सेम नंबर है तो इसका मतलब है कि वन नोट उसमें से जाली है। तो यदि आपके वन नोट नंबर है तो आरबीआई ये ट्रैक नहीं कर सकती है ना कि कौन सा नंबर का नोट किस पर्सन के पास है। लेकिन यदि सीबीडीसी होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उससे पता किया जा सकता है कि कौन सी करेंसी किसके पास है, किसने कहां ट्रांजैक्शन किया है। जस्ट इमेजिन करो कि आप अभी आज क्रेडिट कार्ड से या फिर आप अभी आप गूगल पे से या फोन पे से या फिर पेटीएम से या फिर किसी भी ऐप से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप यूज करते हो तो देयर इज ए ट्रेल कि हाँ, हमने 5000 रुपी इसको दिया है, इस शॉपकीपर को दिया है। अब फॉर एग्जांपल कल के डेट में जस्ट इमेजिन करो कि आपने किसी को 5000 दे दिया, अब कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उससे रिटर्न नहीं दिया या फिर कोई और सामने पर्सन नहीं था जो वो बता सके कि 5000 का करेंसी इन्हें दिया, तो कल ये के डेट में वो मना कर सकता है कि नहीं मैंने तो नहीं लिया। लेकिन यदि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो, किसी को आप चेक देते हो, किसी को आप डिमांड ड्राफ्ट देते हो, किसी को आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ट्रांसफर करते हो, यूपीआई भीम से आप ट्रांसफर करते हो, तो देयर इज ट्रेल कि हाँ, हमने उस चीज को ट्रांसफर किया है। तो ये एक तरह से ये ट्रैक किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है इसमें से कि यदि हम जब आज के डेट में यूज कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीका से, जो आपका गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजों को हम यूज कर पा रहे हैं, तो फिर डिजिटल करेंसी का क्या जरूरत है। तो डिजिटल करेंसी एक तरह से वो फिएट करेंसी होगा। फिएट करेंसी का मतलब ये होता है, एक टर्म जो है फिएट करेंसी, आप एक महीने बताया था कि जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें है उसमें तो आपका वो वस्तु के मटेरियल से आपका वैल्यू डेराइव होता है। लेकिन जो फिएट करेंसी है उसमें एक तरह से उसमें जो है वो एक्चुअल में उस चीज का, उस करेंसी का कोई अपने आप में वैल्यू नहीं। जैसे 2000 रुपी नोट का है, तो जस्ट इमेजिन करो कि 2000 रुपी नोट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे कि अब ये 2000 रुपी का नोट डिमोनेटाइज हो गया है, तब आप उसको एक तरह से कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। और उसके जो पेपर है उसका क्या वैल्यू है, उसका वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है, 2000 रुपी का नोट का वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन जब तक उसमें है कि आरबीआई के गवर्नर प्रोमिस करते हैं, तब तक यदि उसका वैल्यू है तो वो फिएट मनी है। अब जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो का एक तरह से मान के चलो बिटकॉइन यदि है, तो बिटकॉइन फॉर एग्जांपल है कि वो लिमिटेड है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही प्रोड्यूस किया जा सकता है अभी तक का जो टेक्नोलॉजी। हो सकता है कल के डेट में, क्योंकि एवरी टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, लेकिन अभी तक का जो टेक्नोलॉजी है वो 21 मिलियन ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते जाते हो, अभी 21 मिलियन में सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं है, कुछ स्पॉइल भी हो जाते हैं, कुछ जो भी है। तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा नेक्स्ट फर्दर आप करते जाते हो, यानी उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको जो बनाने का कॉस्ट है,
वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि आप गोल्ड माइनिंग, ये इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि गोल्ड माइनिंग यदि आप करते हो तो जब गोल्ड को शुरू में मान के चलो कि माइनिंग स्टार्ट किए, तो हो सकता है आपका जो वो माइन है वो उसमें कम गहराई पे आपसे निकल जाता है। जैसे जैसे आप करते जाते हो तो उसमें से आपका गहराई अधिक होते जाता है। तो अधिक गहराई होते जाएगा तो उसका कॉस्ट जो है वो अधिक होता जाएगा। कॉस्ट जब अधिक होता जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। सेम सिचुएशन आपका है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन आज के डेट में थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं, एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जो इनके प्रोफेसर अरुण कुमार के अनुसार जो है कि ये एक तरह से आपका जो क्या है, स्पेकुलेटिव मनी है। अब स्पेकुलेटिव मनी का क्या मतलब होता है कि अंडरलाइंग एसेट इसके पास नहीं है और बैकअप भी नहीं है, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसी हो सकती है। अब मान के चलो कि जस्ट इमेजिन करो कि किसी को लगता है कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन करो कि यदि लगता है कि समटाइम कि सॉल्ट का कीमत बहुत अधिक हो जाएगा, तो सॉल्ट सब लोग ये संग्रहित करके कलेक्ट करके रखने लगेंगे। और वो कलेक्शन के कारण क्या होगा कि मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। अब डिमांड बढ़ेगा तो एक तरह से वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब लोगों ने हाई प्राइस पे कर दिया। लेकिन सॉल्ट क्या है, सॉल्ट की तो सप्लाई की जा सकती है। अब यदि सॉल्ट की सप्लाई कर दी गई तो फिर वो एक तरह से उसकी प्राइस ये नीचे आ गई। लेकिन स्पेकुलेटिव मनी में भी सेम सिचुएशन हो सकता है कि ये कल के डेट में जस्ट इमेजिन करो कि बिटकॉइन आज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, इसकी जगह कल और जो कॉइन है, मान के चलो इथेरियम है या डॉज क्वाइन है या और बहुत सारे क्वाइन है। अब उन क्वाइन में मान के चलो कि अल्ट क्वाइन है, स्टेबल क्वाइन है, तो उनका यदि वैल्यू डिमांड जो है बहुत अधिक बढ़ गया तो बिटकॉइन आपका जीरो हो जाएगा एक तरह से यदि हो जाता है। जस्ट इसको इस ढंग से समझो। इनिशियली सोशल नेटवर्किंग साइट में हम लोग ऑर्कुट यूज करते थे। अब ऑर्कुट खत्म हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि आज फेसबुक है, आज ट्विटर है। अब कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो फेसबुक से बेटर प्लेटफॉर्म बना दे, तो जिसने भी फेसबुक में इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू तो एक तरह से वर्चुअली जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। तो थिंग्स ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है और सीबीडीसी है वो डिफरेंट है। वो आपका क्रिप्टो जो है एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे कोई बैकअप नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का बैकअप नहीं है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है वो आपका चलता रहेगा, चीजें आपकी वो चलती रहेगी जब तक ये बंद तभी हो सकता है जब ग्लोबल सारी कंपनियां, सारी कंट्री, सॉरी कंपनियां नहीं, वर्ल्ड ओवर सारे जो सोवरेन नेशंस हैं वो साइमल्टेनियसली ट्राई करें कि यस वी हैव टू कंट्रोल दिस। इनफैक्ट इवन प्रोफेसर कुमार सेज कि जो आईएमएफ है ये भी ये ट्रैक कर रहा है कि एट दिस टाइम इट इज सेड कि 100 कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग सीबीडीसीज at one level or another, some researching, some testing, and a few already distributing CBDC to public। तो CBDC अभी इंडिया में कैसा होगा, ये इस चीज का अभी प्रॉपर तरीका से स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। ग्रेजुअली विद टाइम पासिस ये इसके बारे में भी गवर्नमेंट बनाएगी, बताएगी सिचुएशन। देखो इसको ऐसे समझो कि कोई एक तरह से आपका नंबर एक तरह से है, ये वो एक तरह से वर्चुअल मनी ही है। तो एक नंबर होगा, उस नंबर को एक तरह से आप जहां पेमेंट करोगे तो वो एक तरह से कोड कि हाँ हमारे पास इतने हैं करेंसी हैं, 1000 के, 1 लाख के, समथिंग के। तो ये नंबर आपने ये पुट किया, वो नंबर जस्ट हम इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोच रहे हैं कि एक नंबर आपके पास कोई है, उस नंबर के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया तो वो आपके पास से चला गया। अब उसका ट्रेल जो है, लिंक जो है वो एक्स पर्सन के पास चला गया। सेम सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास। अब उससे आप क्या करोगे, जैसे हमने ऑलरेडी शुरू में ही बताया कि मनी के टू वैल्यूज हैं। एक आपका जो है एक्सचेंज वैल्यू और एक स्टोर वैल्यू। तो एक तो आप स्टोर कर सकते हो और एक जो है वो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। मनी होने से क्या फायदा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मनी इकोनॉमी नहीं था तो एक तरह से क्या है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड की जरूरत होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड यानी कि मांग का दोहरा संयोजन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको सपोज कुछ पढ़ा रहा हूं, मान के चलो कि ये इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो अब आप यदि सपोज करो कि ये पेमेंट होता, पेड होता। अब ये आपका यदि डबल कोइंसिडेंस बार्टर सिस्टम उसको कहते हैं, BARTER बार्टर सिस्टम।
तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, कि हम पैसे नहीं देंगे, गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज करेंगे। तो जस्ट इमेजिन करो कि यदि हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ये बोलोगे कि ऐसा है कि मैं आपको 2 kg गेहूं दे देता हूं। किसी ने बोला कि ऐसा है कि मैं आपको जो है 1 जोड़े जूते दे दे रहा हूं। लेकिन मैं ये बोलूंगा ऑलरेडी मेरे पास 6 जोड़े जूते हैं, गेहूं ऑलरेडी हमारे खेत में हो रहा है, तो फिर तो ये हो नहीं पाएगा ना। अब क्योंकि आप बोलोगे कि जिनके पास सपोज गेहूं है वो बोलेंगे बस हम गेहूं ही दे सकते हैं, जिनके पास जूते हैं वो बोलेंगे हम जूते ही दे सकते हैं, जिनके पास सपोज एप्पल है बोलेंगे एप्पल ही आप खा लो, मैंने बोला नहीं एप्पल हमारे गार्डन में है। तो वो प्रॉब्लम होता है कि आपको ये भी मानना देखना होगा कि यदि आपके पास एप्पल है तो आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो आपको एक ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स सिखा सके और एप्पल आपका ले सके। अब सामने कोई बंदा है एप्पल तो आपका लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो इससे इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो वो आपका जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपके पास करेंसी है तो वो उस करेंसी के थ्रू जो आपके पास मनी है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एप्पल है, आपने सेल कर दिया एप्पल मार्केट में, और उससे जो पैसे प्राप्त हुए उस पैसे से आपने क्या किया कि इकोनॉमिक्स सीख लिया, मैथमेटिक्स सीख लिया, व्हाटसोएवर आपने सीख लिया। देखो जब हम फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तरह से भी जो है उसने करेंसी को नई करेंसी जारी करी, लेकिन वो उसका उस समय जो है वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन यदि देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ विजनरी रूलर, कि वो उसने विजन एक देखा, फिएट करेंसी उसने जारी किया। हाउएवर एट दैट टाइम सोसाइटी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और उसके पास वो रेगुलेशन रेगुलेटिंग पावर भी नहीं था कि वो रेगुलेट कर सके कि प्राइवेट पीपल जो है उस चीज को ना मिंट कर सकें। बहुत सारे लोगों ने ये किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय एक तरह से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जो फिएट करेंसी जारी करने का। लेकिन इनफैक्ट उस समय टोकन करेंसी उसको बोलते थे, तब फिएट का ये नहीं था, टोकन करेंसी। ओके, तो टोकन करेंसी जो उन्होंने जारी किया था वो एक तरह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन अभी हम एक तरह से ये सिस्टम चल रहा है, और इट इज सेड कि जो एक तरह से ये कह रहा, लास्ट यदि आप देखोगे, द हिस्ट्री of money is entering a new chapter. The RBI needs to heed this caution and not be defensive. Defensive in the sense, जैसे देखो ये इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में देखोगे कि द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन February highlighted 2 things. First, private cryptocurrencies are a big threat to our financial and macroeconomic stability. Second, these cryptocurrencies have no underlying asset, not even a tulip. Okay. Soon thereafter, a deputy governor of the RBI called cryptos worse than a Ponzi scheme and argued against legitimizing them. Yet, the RBI announced that it will float a central bank digital currency (CBDC). How do we understand this? All this, the Supreme Court of India has also asked the government whether or not cryptos are legal, in the sense कि देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट भी है उन्होंने भी एक तरह से पूछा गवर्नमेंट से कि क्या क्रिप्टो है लीगल है या इलीगल है आपकी नजर में। तो अभी इस पर स्टडी चल रही है, बट स्टिल मैं समझता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा है। ये आपका द हिंदू में 19 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ें, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, और फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप इसको आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और जो भी है आप इसको पढ़ें रेगुलर रूप से। देखो जितना आप ज्यादा एडिटोरियल और ये सारी चीजों को आप पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना जानोगे, तो ही आप लिख पाओगे ना। अब जस्ट इमेजिन करो कि इस आप आर्टिकल को पूरे तरीके से पढ़ते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको ये पता चलेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एज ए डेटा के तौर पर, कि अभी मान के चलो कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल या क्रिप्टो करेंसी जो है, जनरली समझो क्रिप्टो करेंसी जो है उसका वैल्यूएशन करीब 2 ट्रिलियन प्लस है एक तरह से। फिएट मनी क्या होता है, स्पेकुलेटिव मनी क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है, एक तरह से आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने क्या कहा है। तो आप आर्गुमेंट में भी यूज कर सकते हो, रिपोर्ट में भी यूज कर सकते हो, और इसको ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, और कुछ आपको और अन्य एस्पेक्ट्स जानने को मिलेगा जो इंटरव्यू वगैरह फॉर एग्जांपल देने वाले हैं उनको भी वो चीजें मिलेगी। तो आप इस आर्टिकल को ये पढ़ो। ओके, थैंक यू।